السلام علیکم ناظرین کرام، راہ حق چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج دنیا میں 1.8 بلین یعنی تقریباً 180 کروڑ کے قریب مسلمان آباد ہیں، جو کہ دنیا کی آبادی کا 24% حصہ بنتے ہیں، اور اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ لیکن بالکل دوسرے مذاہب کی طرح اسلام میں بھی اتحاد نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تاریخ میں ہونے والے سیاسی واقعات کے متعلق مختلف رائے ہونے کی وجہ سے فرقہ وارانہ تفریق موجود ہے۔ مسلم آبادی کا 87 سے 90% حصہ سنی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ باقی کا 10 سے 13% حصہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن مسلم دنیا میں یہ فرقہ وارانہ تفریق کیسے ہوئی، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بتائیں گے کہ شیعہ فرقہ کیسے وجود میں آیا۔ اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے۔ پورے یورپ اور ایران پر اسلام کا جھنڈا لے کر مسلم پہنچ چکے تھے، پیرس کے قریب تک چلے گئے تھے، فرانس میں اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی ہوم منسٹر تھے، یعنی پوری فوج کا نظام اور قانون کا نظام چلانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھا۔ حضرت عمر کے دور میں جب یہ فتوحات ہوئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایران فتح ہوا۔ ایران میں بادشاہت کا نظام تھا، ان لوگوں کے دل میں ایک بدلے کا جذبہ تھا، ان کے دل میں پہلے ہی سے عربوں کے لیے ایک تناؤ تھا۔ جب صحابہ غالب آ گئے تو وہاں کے جو غاضب لوگ تھے، بڑے عہدوں پر جو فائز تھے، ان میں غم و غصے کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ وہ اسلام کو کسی طور پر نہیں مان رہے تھے، تو ان لوگوں نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ناظرین کرام، پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ فیروز ابو لولو نے حضرت عمر کو قتل کر دیا، جو کہ ایران کا رہنے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کی امامت کروا رہے تھے، یہ بدبخت نمازیوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ حضرت عمر تک پہنچنے کے لیے اس نے 8 صحابہ کرام کو شہید کیا، پھر حضرت عمر کو چھرا گھونپا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے سوال کیا کہ نماز فجر ادا کی ہے یا نہیں؟ کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر نماز پوری کروائی ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ مجھے کس نے زخمی کیا ہے؟ بتایا گیا فیروز ابو لولو نے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی مسلمان نے یہ نہیں کیا۔ روایت میں آتا ہے 27 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا، اور بعض میں آتا ہے کہ 26 ذی الحجہ پر آپ پر حملہ ہوا۔ 3 سے 4 دن آپ زخمی رہے، آپ کا علاج معالجہ ہوتا رہا، لیکن کوئی فاقہ نہیں ہوا، اور یکم محرم الحرام کو آپ اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بہت مضبوط دروازہ ہے اور وہ ٹوٹ کر گر گیا۔ آپ نے فرمایا اے عمر، دروازہ ٹوٹ کر گر گیا یا اس میں دراڑ آ گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹوٹ کر گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، میری امت کا دروازہ تم ہو، جس دن تم گرو گے اسی دن میری امت میں فتنے آنے لگ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان کی خلافت کا دور آیا، ان کی خلافت 13 سال رہی۔ آپ کی خلافت کے 10 سال پرامن رہے۔ اب شروع ہوتا ہے دوسرے بڑے فتنے کا دور۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شمال کے علاقے سنا سے نکل کر ایک شخص آیا جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا۔ یہ شخص آ کر مسجد نبوی کے پاس آ کر ٹھہرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے عثمان بن عفان سے مل کر اسلام قبول کرنا ہے۔ حضرت عثمان اس سے ملے اور کہا کہ تم یمن سے یہاں آئے ہو اسلام قبول کرنے، کیا راستے میں تجھے کوئی مسلمان نہیں ملا جس کے ہاتھ پر کلمہ پڑتا؟ اور یہ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یہ یمن کے سنا کے ایک بہت بڑے یہودی عالم کا بیٹا تھا۔ جب مسلمانوں نے یمن پر قبضہ کیا تھا تو یہ خاندان غلام بن گیا اور یہ بچ گیا۔ اس نے اسلام کا ڈھونگ کیا اور اسی طاق میں رہا کہ جب بھی موقع ملے گا میں ان پر وار ضرور کروں گا۔ اس نے مسلمانوں کے دل و دماغ میں 3 سوال ڈالے۔ اس نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی کے داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم سے ہیں، جبکہ حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں، تو پھر تم نے دوسرے قبیلے میں سے کسی کو کیسے خلیفہ بنا لیا؟ یہ پہلے فتنے کا سوال تھا۔ دوسرا، اس نے یہ کہا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کے حضرت ہارون علیہ السلام وصی تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی حضرت علی کو ہونا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر واپس آ سکتے ہیں تو کیا تمہارے اور ہمارے نبی ان سے غیر افضل ہیں؟ اگر حضرت عیسیٰ آ سکتے ہیں تو ہمارے نبی بھی ہر جگہ ہر وقت موجود ہو سکتے ہیں۔ جب یہ فتنے کی تینوں باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں عام ہوئی تو اسے شہر بدر کر دیا گیا، پھر وہ مصر گیا۔ اس نے سوچا صحابہ اور صحابہ سے ملنے والے مسلمانوں کا علم پختہ ہے۔ اس نے وہاں جا کر ان لوگوں کو اپنی باتوں میں لیا جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد محاذ میں یعنی جنگوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ان کا علم زیادہ پختہ نہیں تھا۔ اس نے وہاں یہ فتنہ پھیلایا، کہنے لگا میں مدینے سے آ رہا ہوں اور عثمان اہل بیت پر بڑا ظلم کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یاد رہے بنو ہاشم اور بنو امیہ میں چپکلش رہتی تھی اور حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے۔ وہاں کے لوگوں میں حضرت عثمان رضی
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ एक जज्बा पैदा किया और इसी जज्बे को झूठ बोल बोल कर भड़काने लगा। अमर बिन आस को जब पता चला कि ये बदबख्त यहाँ फितना खड़ा कर रहा है तो इसे वहाँ से भी शहर बदल कर दिया गया। फिर वो वहाँ से कूफा की तरफ रवाना हुआ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मशवरा दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मदीने से पेरिस तक का फासला बहुत दूर है, हम इन दोनों के बीच के इलाके को कंट्रोल रूम बनाते हैं ताकि पैगामात की रसाई के लिए कोई परेशानी न हो। हम कूफा में एक छावनी बनाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा राजी हो गए, लेकिन इनकी शहादत हो गई। फिर हजरत उस्मान ने वहाँ छावनी बनवाई जहाँ मिलिट्री वाले अक्सर रहा करते थे। अब ये बदबख्त वहाँ की छावनी पहुंचा और उन लोगों का दिमाग खराब करना शुरू कर दिया। कहने लगा, कैसे मुसलमान हो, मदीने में अल्लाह के रसूल के घराने वालों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। और झूठी कस्में खाने लगा और उनको भड़काता रहा, यहाँ तक के फौजियों की एक कसीर तादाद को राजी कर लिया कि चलो हम मदीने का हसार करते हैं और हजरत अली को अपना खलीफा बना लेते हैं। फौज के साथ मदीने आया। जब मदीने आया तो इस मक्कार ने जिलहिज्जा का महीना चुना, क्योंकि इसको मालूम था कि हज का महीना है तो कई सहाबा हज के लिए चले जाएंगे। तारीखी एतबार से जब उसने मदीने को हसार में लिया तो जुम्मे का दिन था। मस्जिद नबी में दाखिल हुआ। नाज़रीन कराम, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बारे में हमारे रसूल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फजीलतें बयान फरमाई हैं। उन पर कितनी मुसीबतें आई जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन पर क्या गुजरा है, जिसे सुनकर मुसलमानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़े। उस बदबख्त ने मिंबर के पास जाकर उनकी दाढ़ी पकड़कर नीचे खींची और कहा, तुम खलीफा बनने के काबिल नहीं हो, मिंबर से नीचे उतरो। सहाबा फौरन खड़े हो गए। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिठा दिया और कहा, ठीक है, मैं नीचे बैठता हूँ, तुम क्या करना चाहते हो? वो कहने लगा, तुम हरगिज खलीफा नहीं रहोगे, अली खलीफा हैं हमारे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हसन और हुसैन हज के लिए गए हुए थे। हमारे हज़रत अफ़्फ़ान को घर में कैद किया गया। मुहर्रम में हज़रत हुसैन के लिए सिर्फ 3 दिन के लिए पानी बंद किया गया, लेकिन इस बदजात ने 3 महीने तक खाना और पानी बंद कर दिया। यहाँ तक नौबत आ गई कि हमारे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर की छत पर चढ़ गए और मदीने वालों को आवाज देकर कहते हैं कि ए मदीने वालों, कैसे हो गए हो तुम? जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना में कहत आया तुम लोग भूखे और प्यासे थे, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन है जो बेर रूमा खरीद कर इन प्यासों को पानी पिलाएगा? मैं उसे जन्नत की बिशारत दूंगा। मैंने उस कुएं को तुम्हारे लिए दुगने दामों में खरीदा और तुम्हारे लिए उसे वक्फ कर दिया। क्या आज उस कुएं से भी एक कतरा पानी उस्मान को नहीं पिलाओगे? मुसलमानों को तो ये तालीम दी गई है कि अगर किसी मुसलमान पर एहसान करो तो उसे ना जितलाओ। नाज़रीन किराम, अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने मजबूर हो गए थे और एहसान याद दिला रहे हैं कि तुम भूल गए हो कि ये कुआं मैंने खरीद कर दिया था, मुझे उस कुएं से ही पानी पिला दो। हज़रत अली, इमाम हसन और हुसैन जब वापस आए और ये सब देखा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, आप हुक्म दीजिए मैं इस कमबख्त की गर्दन मार फेंक दूं और इन सबको कत्ल करूंगा जिन्होंने ये सब किया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ए अली, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मुझे गैब कहीं है, मैं नहीं जानता कि किसके दिल में क्या है। अगर ये मुनाफिक है और मैंने तुमको कत्ल करने का कहा है तो बात सही है, लेकिन अगर ये वाकई मुसलमान है और इसने गफलत में ये हरकत की है और मैंने तुम्हें कत्ल का हुक्म दिया है तो ए अली, क़यामत के दिन उस्मान किसी मुसलमान के कत्ल का गुनाह अपने सर लेकर नहीं उठना चाहता, ये लोग मेरे टुकड़े ही क्यों ना कर दें। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की हिफाजत के लिए मुतय्यन किया। ये 2 बहादुर लाडले अमीरुल मुमिनीन के घर की हिफाजत कर रहे थे। रात के वक्त पीछे से हमला किया गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे और उनको शहीद कर दिया गया। आपके खून के कतरे सूरह बकरा की आयत नंबर 137 पर पढ़े, जिसका आखिरी हिस्सा फसयकफीकाहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम था, यानी बस अल्लाह अन करीब तुझ पर काफी हो जाएगा और वही सब कुछ जानने वाला और सब कुछ सुनने वाला है। तुर्की के म्यूजियम में आज भी ये नुस्खा मौजूद है। हज़रत उस्मान की शहादत के बाद उन कातलों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जोर डाला कि ए अली, हम आपको अपना खलीफा मानते हैं, हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैत लेने से पहले अपने घर लौट गए और दरवाजा बंद कर लिया और कहा कि मुझे डर लगता है ये ऐसे हालात में मुझे खलीफा बना रहे हैं। दूसरे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया और कहा कि ये हमारे नबी का पाक शहर है जहाँ कत्लो गारत गरी हराम है, यहाँ झाड़ का पत्ता तोड़ना भी गुनाह है, अगर यहाँ कत्लो गारत शुरू हो गई तो बड़ा हंगामा होगा। ए अमीरुल मुमिनीन, वक़्त की नज़ाकत को समझकर खलीफा बन जाएं। हालात की नज़ाकत की वजह से हज़रत अली ने बैत कबूल कर ली, वरना इन्हें हुकूमत का कोई शौक नहीं था। हज़रत अमीर माविया उस वक्त कूफा के गवर्नर थे। इन्हें जब पता चला तो वो फौरन फौज लेकर वहाँ से आए और कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि अली बजाय कातिल उस्मान को सजा देने के उनके हाथ पर बैत करवा ली। अशरा मुबशरा के बाकी सब सहाबा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ थे। वो कहने लगे, ए अली इब्ने तालिब, आप खलीफा बने, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन कातिल उस्मान से बदला लें। बहुत बहस और तकरार हुई। बात ये तय पाई कि अली की तरफ से हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्ने अब्बास, जो कि नबी रहमत के सगे चचेरे भाई थे,
वो आएंगे और हजरत मुआविया की तरफ से मूसा अशरी आएंगे, क्योंकि सहाबा कराम उन दोनों की बहुत इज्जत करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हैं जिनके लिए अल्लाह के नबी ने दुआ की कि ए अल्लाह इब्ने अब्बास को कुरान की तफसीर का इल्म दे दे। कुरान की पहली तफसीर उन्होंने ही लिखी। और मूसा अशरी वो हैं जिनसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के मशवरे और राज़ और न्याज करते थे। दोनों ही अजीम सहाबी, ये दोनों जो फैसला करेंगे उसको अली और मुआविया दोनों ही मान लेंगे, ये तय पाया। अब ख्वारिजी निकले ये कहते हुए हजरत अली को कि कुरान के हुक्म को छोड़कर आप अमीरुल मुमिनीन होते हुए कैसे उनके हुक्म को मानेंगे? आपने कुरान के हुक्म को छोड़ दिया, लिहाजा आप आज से अमीरुल काफिरीन हैं। ये है ख्वारिज की शुरुआत जो हजरत अली के ही खिलाफ हो गए। ये फैसले का वक्त था। हजरत अली इब्ने सबा को इसलिए कुछ नहीं कह रहे थे क्योंकि वो मदीने में था और हजरत अली मदीने में कत्ल गारत नहीं करना चाहते थे, वो मौका देख रहे थे। हजरत अली खुद मुआविया को समझाना चाहते थे कि इन बदबख्तों को सजा दी जाए, लेकिन गलत फहमी पड़ गई कि बैत क्यों ली है। कहा गया कि आज रात गुजर जाने दो, कल फजर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी में बैठेंगे और ये दो मुअतबर सहाबा इब्ने अब्बास और मूसा अशरी बात करेंगे और जो भी नतीजा निकलेगा उसको अली और मुआविया मान लेंगे। रात होते ही अब्दुल्ला बिन सबा ने एक नई चाल चली। उसने कहा कि अगर कल सुबह उन्होंने कोई फैसला कर लिया, अली और मुआविया मिल गए तो मैं पकड़ा जाऊंगा। रात में इब्ने सबा ने अपने ही गिरोह में दो लश्कर बनाए और कहा कि एक लश्कर हमला करेगा अमीर मुआविया के खेमों पर और कहेगा कि अली हक पर है, और दूसरा गिरोह वो हमला करेगा अली के खेमों पर और कहेगा कि मुआविया हक पर है। ये रात को हमला हुआ, दोनों तरफ गलत फहमी फैल गई और जंग जमल पेश आई। जंग जमल वो जंग है जिसमें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मैदान में आई, जिसको लेकर कुछ लोग हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहुत बुरा भला कहते हैं कि वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खिलाफ हो गई, जबकि हमारे उलमा कहते हैं कि जब उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मैदान में आई तो हजरत अली फौरन भागते हुए आए और कहने लगे, या उम्मी, ए मेरी माँ, क्या आप कुरान का हुक्म भूल गई कि नबी के बाद आप लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना था? हमारे उलमा तारीख ला कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी माँ दुआ देकर कहती हैं, ए अली, तूने मुझे कुरान याद दिला दिया। ए अली, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं इसी वक्त मैदान से पलटती हूँ। जब वो मैदान से पलट रही थी तो ख्वारिजियों ने आपकी ऊँटनी के पैरों पर ज़रब लगाई तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नीचे आकर गिरी और रीढ़ की हड्डी पर ज़रब आई। जंग और बढ़ गई। फिर जंग को रोकने के लिए बातचीत की गई और जंग रोक दी गई। 1 साल तक अमीर मुआविया वहीं रहे। उसके बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कभी भी ना अमीर मुआविया की तरफ से आई और ना ही हजरत अली की तरफ से आई। ये असल तारीख है। अब जब वो दोबारा मौका आया हजरत अली और अमीर मुआविया के मिल बैठ कर बात करें, उस कमजात ने फिर झगड़ा करवा दिया, जिसके नतीजे में जंग सिफ़ीन हुई। इस जंग में बहुत मुसलमान शहीद हुए। आखिर में अमीर मुआविया ने मसहफ को तलवार की नोक पर उठाया और कहा, ए अली, बस करो, रुक जाओ। तलवार की नोक पर मसहफ को उठाने की वजह थी और वजह यह थी, सही बुखारी जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 67 में आता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुमैया के बेटे हजरत अम्मार बिन यासिर के लिए कहा, ए अम्मार, एक ऐसा वक्त आएगा जब मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़ेंगे। जब उनमें लड़ाई होगी और जो गिरोह गलती पर होगा वो तुम्हें कत्ल कर देगा। हजरत अम्मार थे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ और उनका कत्ल हो गया। जंग सिफ़ीन में जैसे ही अमीर मुआविया को पता चला कि अम्मार बिन यासिर का कत्ल हो गया है, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हदीस याद दिलाई गई कि जो गिरोह गलत है वो अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद करेगा। फौरन मुआविया ने कहा, मैंने कत्ल नहीं किया। कहा गया, लेकिन आप ही ने जंग करवाई है। हजरत मुआविया ने फौरन जंग रोक दी और कूफा की तरफ रवाना हो गए। हजरत अली मदीना में थे। इस जंग के बाद सहाबा कराम ने यह तय किया कि अब हजरत अली अमीर मुआविया को कुछ नहीं कहेंगे। हजरत अली जब तक अमीरुल मुमिनीन रहे, हजरत मुआविया ने उनकी खिलाफत के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। हजरत अली मदीने के खलीफा थे और हजरत मुआविया कूफा के गवर्नर थे। जो हजरत अली फैसला सादर करते, अक्सर वही फैसले कूफा में भी सादर कर दिए जाते। हजरत अली ने कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, ए इब्ने अब्बास, अगर हम कुछ दिन और मदीने में रहेंगे तो यहाँ और फितना फसाद खड़ा होगा, हमारे नबी का शहर नापाक हो जाएगा। अब चूंकि कूफा में ये फितना शुरू हुआ है, हम कूफा को दारुल हुकूमत बनाते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब वहाँ गए तो सबसे पहले काम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किया वो ख्वारिजियों से जंग थी। 10,000 ख्वारिज मारे गए। 2,000 ख्वारिज वापस कलमा पढ़कर आ गए। बोले कि हम आपको अपना अमीर मानते हैं। उनमें से कुछ मुनाफिक थे, डर के मारे आ गए, लेकिन मौका की तलाश में थे कि जब भी मौका मिलेगा हम बदला जरूर लेंगे। हजरत अली फजर की नमाज के लिए निकले। मौके का फायदा उठाकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद कर दिया गया। हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिलाफत 2.5 साल की थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिलाफत 10 साल की थी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 13 साल की थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 4 साल की थी। ये सब मिलाकर 29 साल 6 माह बनती है। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे बाद खिलाफत
खिलाफत राशिदा 30 साल रहेगी, लेकिन ये 29 साल 6 माह हैं। फिर हजरत हसन 6 माह के लिए खलीफा बने, लेकिन खुलफाए राशिदीन में कभी इनका नाम नहीं सुना, सिर्फ 4 का जिक्र होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब 6 माह के लिए खलीफा बने तो तब भी हजरत मुआविया ने नहीं कहा कि मैं खलीफा बनूंगा। 6 माह गुजरने के बाद हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने खुद के नाना हमारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई को पूरा किया। सही बुखारी जिल्द नंबर 5 हदीस नंबर 87 में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरा हसन वो है जब 2 मुसलमानों के ग्रोह लड़ेंगे तो उनमें माहदा और अमन का काम करेगा। 6 माह की खिलाफत के बाद हजरत हसन खुद गए और मुआविया के हाथ पर बैत करके कहते हैं कि ए मुआविया, मैं अपनी बैत आपको देता हूँ, आज से आप हमारे खलीफा हैं। हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिलाफत के 6 माह मिलाए तो खिलाफत राशिदा के पूरे 30 साल हो गए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच हो गई। हमारे नबी का कोई कौल झूठ नहीं हो सकता। शिया उलमा और हजरत मुआविया के दुश्मनों ने हमारे लिए हजरत हसन की खिलाफत को भुला दी गई, क्योंकि अगर उनकी खिलाफत को मान लिया जाए तो उन्होंने हजरत मुआविया के हाथ पर बैत खुद की। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 19 या 20 साल के लिए खलीफा बने। जब तक वो खलीफा रहे तो उन्होंने कभी भी कोई फौज मदीने की तरफ नहीं भेजी कि जाओ हुसैन को जबरदस्ती करो कि वो भी मेरी खिलाफत को कबूल करें, और हजरत हुसैन ने भी कभी नहीं कहा कि मुझे खलीफा बनाओ। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जब इंतकाल हो गया तो यजीद बिन मुआविया को खलीफा बनाया गया। जब यजीद खलीफा बना तो उस वक्त कूफियों ने खतूत लिखने शुरू कर दिए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को, और खत में लिखते हैं, ए हुसैन, यजीद अयाश है और ये बेनिमाजी है, आप आओ हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। तकरीबन 60,000 खतूत लिखे गए। उन कूफियों की ख्वाहिश थी कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे घरानों को खत्म कर देंगे। कूफियों के पीछे साजिश यहूदियों की थी, वो बदला लेना चाहते थे। मदीना की हदूद में यहूदी भी पहले रहते थे। उन यहूदियों ने किसी सहाबिया के साथ नाजेबा हरकत की तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब यहूदियों को मदीना से निकाल दिया। यहूदियों को मदीना से निकलने का बहुत गुस्सा था, वो भी बदला लेना चाहते थे, इसलिए कूफियों ने खतूत लिखना शुरू किए। हजरत हुसैन ने वहाँ जाने का फैसला कर लिया। आपने जाने का इरादा किया। आप मक्कातुल मुकर्रमा से निकलते हैं। नबी रहमत के चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आकर रोकते हैं और कहते हैं, ए हुसैन, मेरे नबी के लाडले नवासे हो आप, मेरे भाई अली के बेटे हो और मैं आपका चचा हूँ। ए मेरे बच्चे, आप कूफियों के बारे में नहीं जानते। ये कूफी वो हैं जिन्होंने हमसे हमारे उस्मान को छीन लिया, जिन्होंने आपके वालिद को शहीद कर दिया। ये जरूर कुछ साजिश करके आपको बुला रहे हैं, आप ना जाओ। हजरत हुसैन ने कहा कि नहीं, उन्होंने बहुत खतूत लिखे हैं, यजीद जालिम है, वो सब मेरे हाथ पर बैत करना चाहते हैं। इब्ने अब्बास के रोकने पर हजरत हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील जो के ताबई में से थे उनसे कहा कि जाओ और कूफियों के हाल मुझे बताओ, अगर कूफी हकीकतन में संजीदा हैं तो हम जरूर जाएंगे। मुस्लिम बिन अकील चले गए। मुस्लिम बिन अकील को हजरत हुसैन ने अपने नुमाइंदा के तौर पर कूफा भेजा बैत लेने के लिए। 10-12 हजार अफराद ने बैत कर ली, लेकिन उसके बाद यजीद की तरफ से गवर्नर बनाकर भेजा गया इब्ने ज़ियाद को। इब्ने ज़ियाद ने आकर जो तशद्दुद और सख्ती की तो सब बैत तोड़कर चले गए। वो मुखलिस नहीं थे। हजरत इमाम हुसैन रास्ते में थे, उन्हें खबर मिली कि कूफियों ने अहद वफा नहीं किया और बैत तोड़ दी है और मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया है। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला को जब खबर हुई कि हजरत हुसैन को मदीने से निकले हुए 3 दिन हो गए हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर तड़प कर निकले, अपने घोड़े को तेज दौड़ाते हैं और हजरत हुसैन से मिलते हैं और जाने से रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुके और अपने पूरे अहले खाना को लेकर गए। वो पहुंच रहे थे तो रास्ते में खबर मिली कि कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया है। आपने इरादा फौरन पलटने का किया है। मुस्लिम के साहबजादे आपके साथ थे, वो कहने लगे, या हुसैन, मेरे बाप के खून का बदला लिया जाए। हजरत हुसैन की मुरव्वत और शराफत थी, उन्होंने कहा, ठीक है, हम कसास लिए बिना नहीं जाएंगे, अब मैं कूफा जाऊंगा। वो वहाँ पहुँचने लगे तो कूफा के इलाके का गवर्नर अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने उमर इब्ने साद को कहा, जो आर्मी का कमांडर था, कि जाओ और हुसैन के खानदान को खत्म कर दो। उमर इब्ने साद ने मना कर दिया, लेकिन मजबूरन उसने ऐसा किया। वो आया और इमाम हुसैन और उनके घर वालों को घेर लिया। हजरत हुसैन ने इब्ने साद से कहा कि ए उमर इब्ने साद, मैं यहाँ लड़ाई की नीयत से नहीं आया, मुझे खतूत भेजे गए हैं, मैं इसीलिए आया हूँ। अगर तुम्हें झूठ लगता है तो ठीक है, मुझे मदीना वापस जाने दिया जाए, या मुझे ऐसे इलाके की तरफ जाने तो जहाँ मुसलमान फौज अल्लाह के लिए जंग कर रही है, मैं उनके साथ शामिल हो जाऊँ, या मुझे यजीद के पास ले जाओ। कूफियों ने इमाम हुसैन को यजीद के पास नहीं जाने दिया। उनको खौफ था कि हमारा कच्चा चट्टा खुल जाएगा। अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद ने कोई बात ना मानी। लानत हो उन सब पर जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया। अल्लाह का अजाब उन पर क़यामत तक आए। अल्लाह ने हजरत इमाम हुसैन के मुकद्दर में शहादत लिखी थी और वो अपने अहले खाना के साथ शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की अमामत का। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की
نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔